زیاد کا جو رہا تو نام حسین کا، جسے زندہ رکھتی ہے کربلا۔ یزید سے پہلے دنیا میں یزید 4000 ہیں، آپ دوا کے لیے ایک بھی نہیں ملے گا۔ حسین سے پہلے دنیا میں ایک بھی حسین نہیں ہے، حسین کے بعد کمرو حسین ہے، یہ احمد حسین ہے، غلام حسین ہے، سلطان حسین ہے، ابراہیم حسین ہے، سب حسین ہے۔ کیا مطلب ہے؟ ان کی عظمت کو اللہ نے بلند کیا ہے، اور جن کی عظمت کر چڑھتے اللہ بلند کرے، اس کو گھٹانے والا خود موت مر جاتا ہے، مر جاتا ہے، لیکن ایسوں کی عظمتوں میں فرق آ جائے یہ کبھی ممکن نہیں ہو سکتا ہے۔ کہتے بس آخری بات، یزید گیا اور سوچا لاؤ اب ایسوں کو اللہ کے بتاؤ۔ نبی نے کہا مسجد میں سکون ملتا ہے، کمینہ سکون مسجد میں کہاں ملا؟ وہاں میں ارے وفاداروں کو سکون ملتا ہے، غداروں کو نبی کے سکون نہیں ملتا ہے۔ مسجد سے بھاگا تو سکون کی جگہ تھی، اللہ نے بھگا دیا، بھاگ گیا، اور اس کے بعد بیوی کی آغوش میں آیا، اور اس سے پہلے کہ یزید اپنا درد بیان کرتا، بیوی اپنا درد خود بیان کرنے لگی۔ کہا اے میرے سرتاج اب یہاں سے چلو، حویلی چھوڑو۔ کہا کیا ہوا؟ کہا رے بھیا ابھی ہم سو رہے تھے، ہم نے دیکھا آسمان کے دروازے کھلے ہیں، فرشتوں کی جماعتیں آ رہی ہیں، امام کے سر کو بوسہ دے رہی ہیں، اور اس کے بعد میں نے دیکھا بادل کا ایک ٹکڑا آسمان سے اترا ہے، اس میں بہت سارے آدمی ہیں، سب خوبصورت ہیں، انہیں خوبصورت آدمیوں کے جھرمٹ میں ایک ایسے خوبصورت آدمی ہے کہ جن کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکتا ہے۔ لوگوں نے کہا یہ محمد عربی ان کے نانا ہے۔ کہتے جیسے ہی ان کے نانا آئے، آنے کے بعد یہ آگے بڑھ کر امام حسین کے سر کو اٹھایا، گلے سے لگایا، اور نبی بہت روئے اور کہنے لگے یا ولدی، اے میرا جگر گوشہ، اے میرا بیٹا، قتلو کا افسوس تجھے عزیزیوں نے قتل کر دیا، وَمِن شُرْبِ الْمَاءِ مَنَعُوكَ، اور ایک بھوٹ پانی تجھ پر بند کر دیا۔ اے بیٹا اتراہم معرفوکا، کیا تو یہ سمجھتا کہ یہ لوگ تجھے پہچانتے نہیں ہیں؟ اے بیٹا تیرے پاس اکیلا نہیں آیا، اے بیٹا دیکھ ہذا جدک المصطفیٰ، میں تیرا نانا محمد مصطفیٰ ہوں، ہذا ابوک المرتضیٰ، یہ تیرا باپ شیر خدا ہے، ہذا اخوک الحسن، یہ تیرا بھائی حسن مصطفیٰ ہے، ہذا عمک جعفر، یہ تیرا چچا جعفر طیار ہے۔ تو کہتے ہیں یزید اس طرح بتاؤ، نبی کے نانا آنے لگے ہیں، نبی کے ابا آنے لگے ہیں، اور نبی کے بھائی آنے لگے ہیں، نبی کے چچا آنے لگے ہیں، اب ہماری موت ہے، اب یہاں سے نکل کے بھاگو۔ پہلے تو یہ مسئلہ کربلا تک تھا، کوفہ تک تھا، تختہ تک تھا، اب ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے گھر کے اندر ہے، ہمیں بہت ڈر لگ رہا ہے۔ یزید بھی کانپا۔ جمعہ کی نماز پڑھ کے امام آئے، اور آنے کے بعد جیسے ہی آئے بیٹھے اطمینان کے ساتھ تو یہ بلایا اور کہا حضرت دیکھیے جو کچھ ہونا تھا وہ ہو گیا، اگر آپ رہنا چاہیں تو یہ خدمت کے لیے انتظام کروں، خدمت کے لیے حاضر ہوں، اور اگر آپ جانا چاہیں تو ہم بڑے ادب کے ساتھ آپ کا انتظام کر دیں۔ امام زین العابدین رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہاں کوئی ہاشمی قریشی ہے نہیں، سب ڈھونڈ کر کے ظلم و ستم کی ٹیک کے اندر مار دیے گئے، اب ہم کہیں نہیں رہنا چاہتے، اب ہماری آخری تمنا ہے کہ روضہ رحمت للعالمین کی ٹھنڈی چھاؤں میں بقیہ زندگی گزارتے ہیں، ہم مدینہ جانا چاہتے ہیں، اپنا دکھڑا اپنے نانا کو سنانا چاہتے ہیں، ہمیں اس قصر میں رہنے کی اب عادت نہیں ہے۔ کہ غرض کے ایک ہفتہ کے بعد یزید نے کچھ پیسے اور کچھ کپڑے سیدہ زینب کی بارگاہ میں لے کر کے آیا، ایسے آیا حاکم بادشاہ ہے، خود لے کر کے آیا، پیسہ اور چادریں لے کر کے آیا، اور اتنا بڑا بدتمیز خدا جب دین لیتا ہے تو عقلیں چھین لیتا ہے، اس کی عقل مار گئی تھی۔ اللہ اکبر، آیا کپڑے پیسے لے کر کے، اور اس کے بعد کہتا ہے یا زینب خذی عوضہ مالا عن مصیبتک، اے زینب جو آپ پر مصیبت ٹوٹی ہے، مصیبت کے بدلے پیسہ کپڑا لے لو۔ سیدہ زینب کو غصہ آ گیا، پیسہ کپڑا پھینکا، اور اس کے بعد کہا یا ویلک ما فلح حیاؤک واجرب وجهک تقتل اخی وتقول خذ عوضہ مالا، اے روسیا افسوس تم پر بے شرم انسان، میرے بھائی حسین کو قتل کرنے کے بعد
माल ले लो। अब ये माल तो दूर की बात है, सारी कायनात एक पल्ले में रख दिया जाए, मेरे भाई हुसैन का रोंगटा दूसरे पल्ले में रख दिया जाए, खुदा की कसम सारी कायनात की सरदार भी मेरे भाई के बदन के एक रोंगटे के बराबर भी नहीं हो सकती है। इसलिए कि मेरा भाई दूसरे भाइयों की तरह नहीं था, मेरा भाई वो है जिसको नबी ने अपने बदन का टुकड़ा करार दिया है, नबी ने अपना बेटा कहा है, नबी ने अपना फूल कहा है, नबी ने अपनी नस्ल कहा है, नबी ने उनको सूंघा है, नबी ने उनको अपने कंधे पे बिठाया है। मेरा भाई नबी के सीने पे खेला है, मेरे भाई की तरह आज तक न कोई पैदा हुआ है और न इसमें कयामत तक पैदा हो सकता है। वो सारा माल सारा कपड़ा यजीद के मुंह पर मार दिया और कहा ये तुझे मुबारक हो, मेरे लिए मेरे भाई का सर ही काफी है। उसके बाद नोमान बिन बशीर ये साथ ये रसूल थे, ये इनको अगुआ बनाया और 1000 का लश्कर एक हफ्ता के बाद यजीद ने तैयार किया और शुहदाए किराम बताओ देखते नहीं हो जब चलती है चाबुक तो कैसे पहले डंडा मार रहा था, चाबुक मार रहा था और देखो बुजुर्गी वो नहीं है, बुजुर्गी वो नहीं है क्या बेटा बाप का कदम चूम ले, बेटी अम्मा के कदम चूम ले, मुरीद पीर का, बल्कि अल्फज़्ल मा शहीदत बिहिल आदाऊ, बुजुर्गी वो है जिसे दुश्मन भी तस्लीम। पहले डंडे मार रहा था, तौहीन कर रहा था और जब समझा इनके अब रहना दुश्वार है, आखिरी वक्त इमाम हुसैन के सर पर मुश्क मल्ला, अंबर मल्ला, खुशबू मल्ला, तो मुश्क अंबर से मुअत्तर करके शुहदाए किराम के सरों को इमाम ज़ैनुल आबिदीन के हवाले किया। अब सुनो जो कुरान कहता है शहीद होने वाले अल्लाह के बंदे जिंदा हैं, अब देखो शुहदाए किराम जो करबो बला के हैं और सरकार के अजदाद हैं, सरकार के जद्दे करीम हैं, वो कैसे जिंदा है। 10 मुहर्रम को शहादत हुई थी, ये शहर दिमश्क से जब हुसैनी काफिला लूटा हुआ जब दिमश्क से निकलता है तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन नोमान बिन बशीर से फरमाते हैं चलो करबला चलो, डायरेक्ट मदीना नहीं चलेंगे। नोमान बिन बशीर ने कहा क्यों? इमाम ज़ैनुल आबिदीन सरकार सज्जाद ने फरमाया था इसलिए कि शुहदाए करबला की अमानतें हमारे पास हैं, ये हमारे बाप का सर है, चचा का सर है, भाइयों के सर हैं, साथियों के सर हैं, हम करबला में जाकर के शुहदा के जिस्मों को उनके सरों के साथ दफनाना चाहते हैं। 10 मुहर्रम को शहीद हुए थे, वापस जब गए तो सफर की 20 तारीख थी, यानी मुकम्मल 40 दिन हो गए थे। 40 दिन के बाद जब ये लुटा हुआ काफिला हुसैनी मैदाने करबला में पहुंचता है तो क्या देखते हैं अब भी अब्बास के बाजू कटे हैं, ताजा खून बह रहा है, हुसैन पाक के 72 जख्म लगे हैं, ताजा खून बह रहा है, अली असगर के हल्के में तीर बसते हैं, ताजा खून बह रहा है, जंग चलाती धूप है, गर्मी का मौसम है, लेकिन 40 दिन गुजर जाने के बाद अब भी ताजा खून जारी था। 40 दिन के बाद भी तरोताजा का मतलब ये है ये शहीद है अल्लाह की बारगाह के, और जो शहीद होता है वो अल्लाह ताला उसे हमेशा की जिंदगी अता फरमा देता है, जिंदा हो जाते हैं। जो मरते हैं हक के नाम पर अल्लाह अल्लाह मौत को किसने मसीहा कर दिया। इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने शुहदाए किराम के जिस्मों के साथ उनके सरों को मिलाया और मैदाने करबला में हर एक शहीद की मज़ार शरीफ बना दी, एक गड्ढा खोदा, उसमें 68 शहीदों को एक कब्र के अंदर दफनाया। हजरत अब्बास को थोड़े फासले पर और मोहम्मद को थोड़े फासले पर, लेकिन जहां पर इमाम आली मकाम सुल्तानुल शुहदा जन्नती जवानों के सरदार हमारे आपके पूरे उम्मत के आका इमाम हुसैन को जब लेटाया तो मैदाने करबला में जब इमाम आली मकाम को लेटाया तो दाहिने आपके बेटे शबीह रसूल इमाम हजरत अली अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को लेटाया और उसके बाद क्या कहते बाईं तरफ आपके सीने के पास आपके 6 महीने के बच्चे शीरखार बच्चे हजरत सरकार अली असगर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को लिटाया और ऊपर से मिट्टी डाल करके कब्र शरीफ बना दिए। अल्लाह अल्लाह, मैंने आलमे तसव्वुर में अपने मालिक सरकार इमाम
इमाम ज़ैनुल आबिदीन से अर्ज किया, गोया क्या मैंने मेरे मालिक इरशाद फरमा दे कि अली अकबर को दाएं रखा, अली असगर को बाएं रखा, ऐसा क्यों है? तो गोया आलमे तसव्वुर में जवाब इरशाद हुआ इमाम ज़ैनुल आबिदीन की बारगाह से कि गुलाम व खादिम सुन, जो दिल होता है वो दिल के करीब रखा जाता है। हमने हुसैन के दिल के पास असगर को इसलिए रखा है कि 6 महीने का तो था, लेकिन इमाम की बारगाह में वही हैसियत रखता था जैसे बदन में दिल हुआ करता है। क्या बात रजा, उस मलिस्ताने करम की ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। बेअदब गुस्ताख फिरकों को सुना दे, ए हसन यूं कहा करते हैं सुन्नी दास्तान अहले बैत। ऐ लोगों, ये सिलसिले बैत ये कल भी अहले बैत में था, आज भी अहले बैत में है। सारी दुनिया में जो बैत ली जाती है तो गोया ये उनके मददगार हैं, उनके मुआविन हैं, उनके गुलाम हैं। इसलिए हमें और आपको चाहिए कि हम और आप हजरत के हाथों पर हाथ दे करके हजरत के गुलाम बने, हजरत के मुरीद बने। अगर आपने हजरत के हाथों में हाथ दिया तो सिर्फ हजरत ही के हाथों में हाथ नहीं है, हजरत के हाथों में आपका हाथ, फिर हजरत का हाथ सरकार मुसल्ली के हाथ, फिर उनका हाथ गौसे आजम के हाथ, फिर उनका हाथ इमाम जाफर सादिक के हाथ, फिर उनका हाथ इमाम ज़ैद शहीद रज़ी अल्लाह तआला के हाथ, फिर उनका हाथ इमाम हुसैन शहीद करबला के हाथ, फिर उनका हाथ इमाम हुसैन के हाथ, फिर उनका हुसैन शेर खुदा के हाथ, फिर शेर खुदा के हाथ अल्लाह के प्यारे हबीब का हाथ, और अल्लाह के प्यारे हबीब का हाथ वो है जिसे अल्लाह ने अपना हाथ फरमाया है। अब बताओ, क्या वो इंसान कभी भेज सकता है जिसने अपने हाथों को रसूलुल्लाह के हाथ में दे दिया हो, अली के हाथ में दे दिया हो, हुसैन और हसन के हाथ में दे दिया हो, ज़ैनुल आबिदीन के हाथ में दे दिया हो? नहीं, पहले तो गिर सकता था, लेकिन अभी आकाओं के हाथ में हाथ दे करके बिक गया है। इंशाअल्लाह ऐसा गुलाम जब भी गिरेगा, संभालने के लिए शेर खुदा आएंगे, हुसैन आएंगे, ज़ैनुल आबिदीन आएंगे, और गिर करके जब आप संभलोगे तो यही कहोगे, दिल को मैंने अपने थामा, उनका दामन थाम के, हाथ अपने दोनों निकले थाम के। इसलिए आप हुसैनी गुलाम हैं, हम हजरत के मुरीद हैं, हजरत के गुलाम हैं। आप भी हजरत के मुरीदों में, गुलामों में शामिल हो जाइए, ताकि फितनों का दौर है, कोई बददीन आपके ईमान पर डाका न डाले। बहुत बड़े बुजुर्ग हजरत बाज़ीद बुस्तामी फरमाया करते थे, मुरीद होना बहुत जरूरी है, जो किसी का मुरीद नहीं होता है, अल्लाह अल्लाह वो शैतान का मुरीद होता है। और मैं तो एक वसीयत और करना चाहता हूँ, कोई कितना भी बड़ा मुत्तकी परहेजगार मिल जाए, लेकिन ऐ मुसलमान, सैयदों के हाथ में हाथ दो, इसलिए कि कल क़यामत में जब नबी की बारगाह में जाओ और सरकार फरमाए, मेरा कलमा पढ़ने वाले क्या दुनिया से लाया, कैसा था दुनिया में, तो अरे कुछ कहो न कहो यही कह देना, सरकार बड़े दुनियादार थे, बस एक दौलत लेकर के आए हैं। आए आपके शहजादे के हाथों में हाथ दे करके आए, देख करके आए हैं, आपके बेटे के गुलाम हैं, आपकी अहले बैत के दर के भिखारी हैं। सरकार हम गारों में तर्ज़े अदब कहाँ, हमको तो बस तमीज तेरी भीख भर की है। सरकार हम तो बुरे और नाकारा हैं, लेकिन हमारे नाकारा हाथ आपके बेटों को हमें दिया है, अपने बेटों के सदके हमें जहन्नम से बचा करके जन्नत का तोहफा दिलवा दीजिए। इंशाअल्लाह दुनिया भी अच्छी, कब्र भी अच्छी, और हश्र भी अच्छी होगी। अल्लाह ताला हमको आपको नबी औलाद नबी की मोहब्बत पर जी कर जीने की और मरने की तौफीक अता फरमाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप ये करें